Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. My dear students, now I am going to explain a very important chapter, that is private, public and global or multinational companies in business studies class 11. So now come with me and enjoy this class. My dear students, Indian economy is mixed economy, and while we are talking about the mixed economy, it means it is the combination of private and government owned, managed and controlled enterprises. देखो यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल कंपनीज। अब अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, भारतीय अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, देन इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. वाई? Because here the private and public organizations are jointly perform its work. So now my dear students, see types or kinds of business sector. It consists of three types such as private sector enterprises, public sector enterprises and global sector enterprises or multinational companies. Also it is known as multinational companies. While we are talking about global sector, it means it is the MNCs, multinational corporations. So now come with me, and it is the next part, that is the private sector enterprises. Now we are going to discuss all these points one by one. So first one is private sector enterprises. While we are talking about private sector enterprises, then we can say that the enterprises which are owned, controlled and managed by an individual person or a group of individuals are known as private sector enterprises. अब अगर हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज जिसमें ओनरशिप, कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का हो, किसी एक इंसान का हो या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा हो रहा हो, तो हम उसे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे अगर हम केयर करें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, देन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम लोगों ने पढ़ा. These are the examples of private sector enterprises. Now come to the next point, and that is related with the next point, and it is your public sector enterprises. While we are talking about public sector enterprises, it means organizations owned, managed and controlled by the government are known as public sector enterprises. अगर हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जिनका ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के थ्रू की जा रही हो, हम उन्हें पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में रखेंगे. जैसे अगर हम बात करें सच इंटरप्राइजेस में ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और इस्टेब्लिश्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. अब अगर हम बात करें ऐसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की, तो ये या तो किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर में होते हैं. जैसे अगर हम रेलवे मिनिस्ट्री की बात करें, कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात करें, या फिर जब इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है, देन दे आर इस्टेब्लिश्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. अब अगर हम टाइप्स की बात करें सच एज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सच एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज. नाउ
come to the next point, and that is related with your global enterprises. Global enterprises, or we can say multinational companies, MNCs. Now consider here, while we are talking about MNCs or multinational companies, then we can say that the multinational companies are those organizations whose managed ownership and controls are spread in more than one foreign country. कहने की मीनिंग यहाँ पर ये है कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनेजमेंट, ओनरशिप और कंट्रोलिंग एक कंट्री के साथ ही साथ कई कंट्रियों तक अगर फैला हो, मीन्स ग्लोबल मीन्स बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, एंड MNCs have their operations in a number of countries. They are different by their large number of products, technology, huge size and marketing strategies. It means कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक से अधिक कंट्री तक फैला हो, उसका मैनेजमेंट, उसका ओनरशिप और उसकी कंट्रोलिंग जो होस्ट कंट्री है जहाँ से वो डायरेक्टली रिलेटेड है, नेटिव कंट्री में हो, और इसके ब्रांचेस एक से अधिक देशों तक फैले हों, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्लोबल इंटरप्राइजेस कहते हैं। और ये बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, एंड दे आर डिफरेंट इन देयर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इनकी जो प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी होती है प्रोड्यूस करने की वो बहुत ज़्यादा होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ये यूज करते हैं, और जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो भी बिल्कुल कह सकते हो कि स्टैंडर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं। दैट्स वाई दे आर यूटिलाइजिंग ह्यूज अमाउंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हम इसे मल्टीनेशनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे, रखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. This is all about your private, public and global organizations.